Hello students, today we are start first unit of your biochemistry. In that first bit is your the biomolecule. Today we will discuss the first biomolecule, the name of your carbohydrate. Students, carbohydrate we have to use daily life is very rarely और very morely particularly. Okay, maximumly हम carbohydrate use करते हैं daily life में for meal purpose. Like is your, see this is the example, like is your the bread, then rice, potato, all of maximum thing which having contain the carbohydrate. What is the meaning of carbohydrate? Okay, carbohydrate which having joined to the two word carbo and hydrate means simply the hydrated carbon. Simply hydrated carbon, it's your the carbohydrate. Okay, means carbohydrate means hydrated carbon which having contain the three ingredient carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen. First of all, what is the meaning of carbohydrate? What is the definition of carbohydrate? Carbohydrate is your polyhydroxyaldehydic and ketone group, means the two chemical group present in your carbohydrate. First one is your the aldehydic, second one is your ketone or aldehydic or ketonic group derivative which having formed by hydrolysis. Okay, particularly aldehydic or ketonic group form होते हैं. Simply you heard about it, carbohydrate means it is a hydrated carbon which having including carbon, hydrogen and oxygen. The carbohydrate is your the polyhydroxyaldehyde and ketonic group. Poly means number of hydroxy group involved रहते हैं aldehydic group को as well as ketonic group को. That is your carbohydrate, and carbohydrate is a very abundant source of energy, and this is a very abundant biomolecule we have to use in a daily life as a purpose of to gaining of energy or to formation of energy. It's your the carbohydrate. In this chapter we will discuss about what is the basic part of your the carbohydrate, definition of your carbohydrate, function of your carbohydrate, then classification of carbohydrate, reaction of your monosaccharides, and particularly property of monosaccharides. Okay, start one by one. Particularly the first one is your the introductory part. Carbohydrates are the most abundant organic molecule in a nature. I was say you particularly the carbohydrate is one of the very commonly or very more abundant energy source, in a naturally which having naturally origin as well as the synthetic origin is also. Then the carbohydrate are the most abundant organic molecule. Very widely using this organic molecule as a purpose of your the formation of energy to survive, the energy which having help to the survival of human being. The carbohydrates are essentially hydrated of carbon, as a name indicating in that the hydrated of carbon. Carbohydrate is your the hydrated carbon. They having a composed carbon, hydrogen and oxygen and having composition of your CH2O particularly. Okay, definitely the carbohydrate is your the essentially hydrated carbon. ये क्या है? hydrated carbon which having composed carbon, hydrogen and oxygen. Three particularly carbon, hydrogen और oxygen ये carbohydrate में include रहते हैं. Then next one is your the what is the meaning or definition of carbohydrate? Carbohydrate may be defined as polyhydroxyaldehyde or ketone group. Polyhydroxyaldehyde or ketone group. Poly means maximum, lots of. Hydroxy means water containing. Okay, polyhydroxyaldehyde or ketone group means both group are present. Okay, or in both group particularly carbohydrate is a present aldehydic as well as ketonic, and their derivative they are the form on hydrolysis. On the hydrolysis the carbohydrate may be formed. This is the basic introductory part of your carbohydrate. Carbohydrate is your the abundant organic molecule we have to use for the
purpose of your formation of energy. The carbohydrate means simply the called as a hydrated carbon, which having including in that the carbon, hydrogen and oxygen particularly. Okay, carbohydrate is a simply polyhydroxyaldehydic or ketonic group which having form on a hydrolysis. The next one is that the function and role of your carbohydrate. Why the carbohydrate needed to the body? What is the role of the carbohydrate in your body? The first one is they are the most dietary source of energy for all organism. डेफिनेटली सेल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. हैंस द कार्बोहाइड्रेट इज द अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल ऑर्गेनिज्म, फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली. ओके, मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था तब भी बताया था कि वन ऑफ द वेरी कॉमनेस्ट एंड ईजिली अवेलेबल ऑफ और वेरी चीपेस्ट abundant source of energy, it's your carbohydrate. Second one is the carbohydrate are precursor for the many organic compound. First of all, what is the mean of precursor? Precursor यानी क्या? कार्बोहाइड्रेट खुद का कन्वर्जन उसमें कर लेना. कार्बोहाइड्रेट इट्स अ प्रीकर्सर मीन इट itself convert it. Itself converted carbohydrate are the precursor of many organic compound. Example: fats, amino acid and lipids. Fat, amino acid and lipid. Maximum time what happen at a time of the deficiency of fat, deficiency of amino acid, the what happen, carbohydrate itself converted into the lipid, amino acid and your protein. Okay, the carbohydrate are the precursor for the many organic compound, like is the fat, amino acid and lipid. Next one, carbohydrate participate in the structure of cell membrane and the cellular functions such as the cell growth, adhesion and fertilizer. डेफिनेटली यदि सेल का यदि मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवाइडेशन करना होगा, देयर इज अ नीडेड एनर्जी पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए. और सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है पर्टिकुलरली उसे फॉर्मेशन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. एंड दिस इज ऑल्सो हेल्प टू द multiplication of or proliferation of your cell. The carbohydrate is also used as a cell growth, adhesion and the fertilizer. Then fourth one, they are the structural and functional of many organisms. Definitely they see cell wall के cell membrane formation के लिए आपको carbohydrate लग रहा means the structurally to formation of your the cell membrane. तो formation of cell membrane at that time the carbohydrate is needed. And functional like is the energy. Without energy no one chemical reaction is possible. Without energy no one chemical reaction is possible. Hence the particularly the carbohydrate is your structurally functionally of many organism. Some carbohydrate are high in fiber. Some carbohydrates are high in fiber which help prevent the constipation and lower the risk of certain disease such as cancer, heart disease and diabetes. Okay, ऐसा पेशेंट है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिनके पर्टिकुलरली स्टमक में इश्यूज है, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिपेशन हो गया, मोशंस प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करते हैं कि सम कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइडेड बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट विच हैविंग कंटेंट द फाइबरस मटेरियल होने की वजह से पर्टिकुलरली जो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है मीन्स द मोशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वो पेशेंट को पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइटरी सोर्स प्रोवाइड करते हैं. ऐसे कार्बोहाइड्रेट डाइटरी सोर्सेज जिसमें फाइबर्स हायर अमाउंट में हो. एंड दिस कार्बोहाइड्रेट विच हैविंग द हेल्प टू लोअर द रिस्क ऑफ पर्टिकुलरली सर्टन डिसीज, लोअर द रिस्क ऑफ सर्टन disease like is the cancer, heart disease and diabetes. That is your carbohydrate. Okay, the certain type of carbohydrate encourage the growth of healthy bacteria in the intestine for the digestion. Definitely at a time of digestion के लिए पर्टिकुलरली पर्किन सेल वगैरह, मतलब डाइजेशन के लिए जो भी सेल्स रिक्वायर्ड है पर्टिकुलरली उसका ग्रोथ भी कार्बोहाइड्रेट करता है. यदि उसकी ग्रोथ प्रॉपरली होंगी तो डेफिनेटली डाइजेशन इट्स गोइंग टू प्रॉपरली. ओके, दिस इज अ नियर अबाउट 6
function of your carbohydrate. Hope you understand. First one is your the abundant source of energy, which having help to the precursor of your the many organic compound, like is your the lipid, protein. Now carbohydrate is also participation in the structure of cell membrane particularly, okay, and also the proliferation. They having also involving in that the many functioning or structuring activity on your the many organism. Carbohydrate which having also help to the patient which having suffering from the constipation. At that time the higher fiber containing carbohydrate they having a provided to remove the constipation, okay. Hope you understand, that is easily. Next one is your the classification of your carbohydrate. Classification of your carbohydrate, okay. The carbohydrate are divided into the three major class. Carbohydrate is divided into the three major class. Upon they are not undergo the hydrolysis and they do the number of product is a form, okay. आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे फॉर्म होता है? फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस. आफ्टर द हाइड्रोलिसिस कितने पर्टिकुलरली आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं उसके बेसिस पे पर्टिकुलरली उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ओके. हाइड्रोलिसिस करने के बाद यदि एक मॉलिक्यूल ही जनरेट हो रहा है, इट्स कॉल्ड एज अ मोनोसैकेराइड. सैकेराइड यानी क्या? शुगर. मोनो मीन्स सिंगल. 2 हो रहा है, मोर देन 2 हो रहा है, अप टू 9 हो रहा है, इट्स योर द ओलिगोसैकेराइड, ओके. इट्स अ रेंज 2 to 9 प्रोडक्ट यदि फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर द हाइड्रोलिसिस. आफ्टर द हाइड्रोलिसिस यदि 2 to 9 पर्टिकुलरली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज अ ओलिगोसैकेराइड. एंड पोली मीन्स मोर देन 10, मोर देन 15. फिर वो 15 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन इट. इट्स अ लॉन्ग चेन. Polysaccharide, it's a long chain in higher molecular substances, like example of your starch and heparin, okay. First on your there are classified into the three types. हाइड्रोलिसिस के बाद जितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उसके बेसिस पे पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन हुआ है. फर्स्ट वन इज योर द मोनोसैकेराइड. मोनो मीन्स सिंगल, सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल. डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट आपका स्वीट नेचर रहता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ योर ग्लूकोज. मोनोसैकेराइड. सेकंड वन इज योर द ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड यानी क्या? आफ्टर द हाइड्रोलिसिस द फॉर्मिंग प्रोडक्ट इज योर रेंजिंग ऑफ योर 2 to 9. 2 से 9 प्रोडक्ट एटलीस्ट फॉर्म होंगे, इट्स कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड. एंड पॉलीसैकेराइड इज अ मोर देन द 10, ओके. इट्स योर क्लास. वी सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज योर द मोनोसैकेराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट इज योर द अल्डिहाइडिक एंड केटोनिक ग्रुप, राइट. Aldehydic and ketonic group. It's a polyhydroxyaldehydic and ketonic group, okay. First one see monosaccharide. Mono means single. हाइड्रोलिसिस के बाद सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना, इट्स कॉल्ड एज अ मोनोसैकेराइड. सैकेराइड मीन्स शुगर, मीन्स ग्लूकोज, ओके. द मोनोसैकेराइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन ग्रुप which cannot be decomposed by hydrolysis to give the simpler carbohydrate. It's a simpler carbohydrate, okay. सिंपल कार्बोहाइड्रेट है पर्टिकुलरली. जैसे ही पर्टिकुलरली हाइड्रोलिसिस हुआ एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और जो सिंगल और सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिकम्पोज नहीं होता है. जैसे जैसे डिकम्पोज होता जाएगा पर्टिकुलरली वैसे वैसे मॉलिक्यूल बाहर निकलते जाएंगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल आपके बाहर निकलते जाएंगे. तो डेफिनेटली द मोनोसैकेराइड इज योर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन ग्रुप which cannot be decomposed by the hydrolysis. हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस के वजह से मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फिर फॉर्म होते जाते हैं उससे, ओके. बट मोनोसैकेराइड का ऐसा नहीं है. मोनोसैकेराइड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द हाइड्रोलिसिस टू गिव द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ओके. On the basis of carbon involving in your monosaccharide, it's also categorized into the sometime, okay. Triosis means the 3 carbon containing monosaccharide compound. The example is your the glyceraldehyde, dehydroxyacetone, okay. Tetroses means the 4 carbon containing monosaccharide. The example is your D-erythrose. Pentose means the 5 carbon containing monosaccharide. Example D-ribulose and D-xylose. Next one is your the hexose.
Next one is your the hexose. Hexose means the 6 carbon containing monosaccharide group. Okay, triose means 3 carbon containing monosaccharide group. Tetra means 4 carbon containing monosaccharide group. Pentose means 5 carbon containing monosaccharide group. Hexose means 6 carbon containing monosaccharide group. Example is your glucose, galactose and D-mannose. D means dextro. D means dextro. And heptane means it's a 7 carbon containing monosaccharide compound. 7 carbon containing monosaccharide compound. The example is your D, pseudoheptulose. Pseudoheptulose. Is the clear? First one is your the monosaccharide. Okay. अब मोनोसैकेराइड के बाद ओलिगोसैकेराइड यानी क्या, डाइसैकेराइड यानी क्या, 2 molecule ऑफ मोनोसैकेराइड, इट्स कॉल्ड एज अ डाइसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड यानी क्या, द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ग्रुप, इट्स कॉल्ड एज अ पॉलीसैकेराइड. राइट, इट्स क्लियर, दैट्स अ बेसिक पार्ट. नेक्स्ट वन इज योर द सेकंड क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर द ओलिगोसैकेराइड. Oligosaccharide. Oligo means a Greek word. Oligo means Greek. Oligo is the Greek word. Its meaning of few. Its meaning of few. Okay. The oligosaccharide are the carbohydrate which yield a definite number is 2 to 9. Means after the hydrolysis it give 2 to 9 product of monosaccharide molecule on hydrolysis. Okay. जैसे ही hydrolysis होगा the oligosaccharide give 2 to 9 product. Okay, the range of 2 to 9 product, it's called as a oligosaccharide. Oligo means your Greek word, its meaning of few. Its meaning of few, right? There is also classified into the 2 types. Oligosaccharide is also classified into the 2 types. First one is your the disaccharide and trisaccharide. Okay, disaccharide मोनो पता है सिंगल, तो डाई में क्या होगा, डबल. विच yield 2 monosaccharide molecule on hydrolysis. After the hydrolysis particularly which give the 2 monosaccharide compound, it's called as a disaccharide. It's called as a disaccharide. Okay, the disaccharide is also divided into the 2 types, reducing sugar and non-reducing sugar. Reducing sugar and non-reducing sugar. Reducing sugar यानी क्या, the carbohydrate which contain free aldehydic and ketonic group. क्या, free aldehydic and ketonic group, it's called as a reducing sugar. जिस कार्बोहाइड्रेट में फ्री अल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप होता है, इट्स कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग शुगर. द एग्जांपल इज योर द माल्टोस, लैक्टोस एंड ग्लूकोज. माल्टोस, लैक्टोस एंड ग्लूकोज. ओके, रिड्यूसिंग शुगर यानी क्या, इट कंटेन फ्री अल्डिहाइडिक एंड केटोनिक ग्रुप, इट्स कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा, it does not contain free aldehydic and ketonic group, it's called as a non reducing sugar. The only one single example is your the non reducing sugar is your the सुक्रोज. ये सिंगल एग्जाम्पल है, इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है. सुक्रोज इज योर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज इज योर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इट्स क्लियर. Oligosaccharide is classified into the 2 types, disaccharide and trisaccharide. Disaccharide means which having yield the 2 monosaccharide compound on a hydrolysis, it's called as a disaccharide. Disaccharide is also categorized into the 2 types, reducing sugar and non-reducing sugar. Reducing sugar यानी क्या, which having contain free aldehydic and ketonic group. कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और केटोनिक ग्रुप. रिड्यूसिंग शुगर यानी क्या, which having contain free aldehydic and ketonic group. Example is your the maltose and lactose. नॉन रिड्यूसिंग यानी क्या, इट डज नॉट कंटेन फ्री अल्डिहाइडिक एंड केटोनिक ग्रुप, इट्स कॉल्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इट्स अ सिंगल एग्जाम्पल, इट्स योर द सुक्रोज. सेकंड कैटेगरी इज इन द ट्राइसैकेराइड. इज द नेम इंडिकेटिंग इन दैट. ट्राई यानी क्या, विच हैविंग यील्ड द 3 monosaccharide compound on hydrolysis. Okay, which yield the 3 monosaccharide compound, means 3 monosaccharide के प्रोडक्ट और 3 monosaccharide कंपाउंड इन्वॉल्व रहते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ ट्राइसैकेराइड. इट्स कॉल्ड एज अ ट्राइसैकेराइड. एग्जाम्पल इज योर द रैफिनोज एंड फ्रुक्टोज. एग्जाम्पल इज योर द रैफिनोज एंड फ्रुक्टोज. इट्स क्लियर. सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट हमने देखा मोनोसैकेराइड, सेकंड वन इज योर द ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज योर द पॉलीसैकेराइड. थर्ड वन इज योर द पॉलीसैकेराइड. ओके, पॉली मीन्स नंबर ऑफ,
number of monosaccharide group involving in that compound is called as a polysaccharide. The polysaccharide are the carbohydrate of a high molecular weight. Definitely जितने आपके molecule बढ़ते जाएंगे, okay, listen, मोनोहाइड्रेट जो कंपाउंड है उसका मोलिकुलर वेट 60 है. डाई में क्या हो जाएगा, दो पर्टिकुलरली मोनोसैकेराइड कंपाउंड है तो वो क्या होगा इंटू 2 मीन्स 60 इंटू 60 120. ओके, ट्राई में क्या हो जाएगा 180. और पोली में तो क्या है, इट्स अ लॉट्स ऑफ, तो डेफिनेटली मोलिकुलर वेट इज इंक्रीजेस, मीन्स द पर्टिकुलरली पॉलीसैकेराइड इज योर द हायर मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस. हायर मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस. ओके, जो इंसुलिन एग्जांपल दिया है ना उसका 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इतना मोलिकुलर वेट है, इतना मोलिकुलर वेट है. जीपैट में पूछा गया था, अभी जीपैट में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यू था. ओके, पॉलीसैकेराइड आर द कार्बोहाइड्रेट ऑफ हाई मोलिकुलर वेट विच इल्ड मेनी मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस. क्या हो रहा है, मेनी मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल ऑन hydrolysis. The example is your the starch, dextrin, insulin and your the glycogen. Here is your finish the classification of carbohydrate. Okay, carbohydrate is the categories into the 3 types: monosaccharide, disaccharide and your oligosaccharide. Okay, hope you understand, it's very easy. Next one is your the chemical property of monosaccharide. The 5 chemical property of monosaccharide which having in list here. First one is your the dextro and levo isomer of glucose. Okay, dextro and levo. Second one is your the optical activity. Only the carbohydrate material which having show the optical activity. Carbohydrate material which having show the optical activity. Okay, maximally. Third one is your the epimer. Fourth one is your the enantiomer and fifth one is your the anomer. Okay, अब ये क्या रहता है प्रॉपर्टी पता है क्या आपको, स्ट्रक्चरल सेम रहेंगे बट कन्फिगरेशन चेंज होगा. कन्फिगरेशन मीन्स पोजीशन चेंज रहेंगी. ओके, सब C6H12O6 ही रहेंगे बट कन्फिगरेशन चेंज होगा. बताता हूँ मैं कि किस तरह से. फर्स्ट वन इज योर द DNL आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. DNL isomer of glucose. Okay, DNL, D यानी dextro, L यानी levo. Dextro and levo isomer are mirror image of each other. Okay, आपको पता है, आप यदि आईने में देखोगे राइट हैंड यदि आप अपर करोगे तो आपको मिरर में क्या होगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा. मतलब राइट हैंड में जो सेकंड पोजीशन पे OH है डेक्स्ट्रो में, तो वो लीवो में क्या दिखेगा, सेकंड पोजीशन का लेफ्ट साइड दिखेगा. ओके, इट्स क्लियर. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि किस तरह से होता है. मिरर में यदि आप राइट हैंड ऊपर करोगे तो वो लेफ्ट हैंड होगा. जस्ट कंसीडर कि सेकंड कार्बन पे राइट हैंड पे OH होगा लीवो में, तो डेक्स्ट्रो में क्या होगा, लेफ्ट हैंड पे OH होगा. दैट्स अ सिंपल डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर. द स्पार्शियल ओरिएंटेशन ऑफ H एंड OH, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोक्सी मीन्स H और OH कंपाउंड. ओके, द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ H एंड OH ग्रुप ऑन द C एटम. ओके, कार्बन 5 ऑफ ग्लूकोज मीन्स DNLO आइसोमर मैक्सिमम लिखा चेंज होता है कार्बन नंबर 5 पे. ओके, एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन डिटरमाइन वेदर द शुगर D और L. ओके, OH इज योर द hydroxy compound means your alcohol. Okay, OH means your hydroxy compound is your alcohol. तो लास्ट से पर्टिकुलरली 5 नंबर का जो कार्बन रहता है वहाँ पे पर्टिकुलरली वो चेंजेस होता है. राइट, नेक्स्ट, इफ द OH ग्रुप ऑन द राइट साइड द शुगर इज अ D आइसोमर. OH ग्रुप यदि 5 नंबर के पोजीशन पे OH ग्रुप यदि राइट साइड पे होगा इट इज योर D आइसोमर. यदि वही 5 नंबर का OH ग्रुप यदि पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड पे होगा इट्स योर द लीवो आइसोमर. क्लियर.
C5 पोजीशन पे यदि OH आपका राइट साइड पे होगा तो वो डेक्स्ट्रो रहेगा, यदि लेग साइड पे होगा तो पर्टिकुलरली लिवो आइसोमर रहेगा। इट्स क्लियर ना। मैमेलियन टिश्यू हैव द डी शुगर, मैमेलियन टिश्यू हैव द डी शुगर। अब डी शुगर यानी क्या, कौन से साइड पे OH ग्रुप होगा, इट्स यूर द राइट साइड। ओके, फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप आपका राइट साइड पे होगा, दैट इज यूर द डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड पे होगा तो लिवो। इट्स क्लियर, इट्स अ मिरर लाइक इमेज। सी द एग्जाम्पल, नॉट प्रॉपरली visible but you see the particularly carbon 5. okay, it's your carbon 5 पोजीशन पे पर्टिकुलरली चेंजेस होकर होते हैं। सी कार्बन 5 मीन्स जो सेकंड पार्ट है नीचे से लेके ऊपर तक। ओके, सी ये ओके देखो यहाँ पे सेकंड जो बताया, क्योंकि ये यहाँ से ये फर्स्ट है और ये फिफ्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है। देखो ये दो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल है, सॉरी ये दो एग्जाम्पल है। देखो H सेकंड वाला लेफ्ट साइड पे इट्स योर द लियो, और ये पर्टिकुलरली OH, दोनों चेंजेस है पर्टिकुलरली। सी सेकंड नंबर पोजीशन, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इट्स अ मिरर लाइक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली चेंज इन अ कार्बन टर्मिनल ऑफ योर OH ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वन इज द सेकंड कैटेगरी इज योर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ मैक्सिममली शो ओनली द दोस कंपाउंड हैविंग अ बोथ लिवो एंड डेक्स्ट्रो isomerism. Okay, the carbohydrate is your the carbohydrate is a material which having show the optical activity, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को आपको डिटर्मिनेशन करने के लिए पोलरिमीटर का यूज़ होता है। पोलरिमीटर में क्या होता है कि पर्टिकुलरली आप 30 ml जो भी शुगर सॉल्यूशन है वो प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद पोलरिमीटर में ऑब्जर्व करना है कि पोलरिमीटर का लाइट जो है वो किस तरफ जाता है, लिवो की तरफ जाता है या डेक्स्ट्रो की तरफ जाता है, मीन्स लाइटिंग पार्ट की तरफ जाता है या डार्कनिंग पार्ट की तरफ जाता है। उसके बेसिस पे पर्टिकुलरली वो डिसाइड किया जाता है कि जो शुगर सॉल्यूशन हमने ऐड किया है वो लिवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। The optical activity is a characteristic feature of compound with the asymmetric carbon atom. What is the meaning of asymmetric carbon atom? The carbon atom which having contained the 4 different group, it's called as a asymmetric carbon atom. It's called as a asymmetric carbon atom. जो कंपाउंड को asymmetric कार्बन आइटम है वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इट्स क्लियर। ओके, कौन शो करेगा? जो कंपाउंड असिमेट्रिक कार्बन आइटम है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। दैट्स क्लियर। वेन अ बीम, जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशन आप प्लेस कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि पोलरिमीटर में उसे प्लेस कर देंगे। वेन अ बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज अ पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर, इट विल बी रोटेटेड आइदर द राइट और लेफ्ट साइड। राइट साइड रोटेट हुआ तो क्या बताया मैंने? डेक्स्ट्रो। लेफ्ट साइड हुआ तो लिवो, राइट? डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन, जैसे आप लाइट पास करेंगे रोटेशन पे पता चल जाएगा जो आपका पर्टिकुलरली कर्वर है, कर्स है। ओके, कर्सर जो है वो कहाँ जाता है, पर्टिकुलरली पॉइंट कहाँ जाता है, लिवो की तरफ जाता है या डेक्स्ट्रो की तरफ जाता है? मीन्स पॉजिटिव की तरफ गया इट्स अ डेक्स्ट्रो, मीन्स राइट हैंड पे गया इट्स अ डेक्स्ट्रो, नेगेटिव इज योर द लेफ्ट साइड, इट्स योर लिवो। यदि पोलरिमीटर का लाइट पास करने के बाद सॉल्यूशन से जैसे ही पास होता है, यदि जो आपका पर्टिकुलरली कर्सर है, कर्सर यदि पॉजिटिव की तरफ जाता है, मीन्स पॉजिटिव का रहेगा आपका राइट साइड पर रहेगा और लिवो का रहेगा निगेटिव साइड पर रहेगा। यदि पॉजिटिव की तरफ जाता है इट्स योर डेक्स्ट्रो, और यदि वही निगेटिव की तरफ जाता है इट्स योर लिवो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर द रेसिमिक मिक्सचर। व्हाट इज द मीन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर? means if D and L isomer are present in equal concentration is called as a racemic mixture. Okay, आपको 2 कंपाउंड है, 2 कंपाउंड यदि आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में उसे मिक्स कर रहे हो, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर। कंपाउंड A 50 ग्राम, कंपाउंड B 50 ग्राम, बोथ आर मिक्स टू ईच अदर, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर बिकॉज द सेम कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंसेस, सेम कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंसेस। ओके,
और डेफिनेटली रेसिमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में पर्टिकुलरली इंक्लूड है. ओके, नॉट एग्जिबिट. दैट इज योर द ऑप्टिकल एक्टिविटी. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, आपको क्या करना है कि पोलरिमीटर में आपको 30 ml सॉल्यूशन प्लेस कर देना है. पोलरोमीटर. और एक बात बताता हूँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करेगा? ओनली दोज कंपाउंड विच हैविंग कंटेनिंग असिमेट्रिकल कार्बन आइटम. असिमेट्रिकल कार्बन आइटम. जैसे आपने पोलराइज लाइट पास किया, पास करने के बाद यदि वो लेफ्ट की तरफ मीन्स पॉजिटिव की तरफ, राइट तरफ मूव हो रहा है मीन्स पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, इज योर द डेक्स्ट्रो. और लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है मीन्स निगेटिव की तरफ मूव हो रहा है, इट्स योर लिवो. ओके, दैट इज योर ऑप्टिकल एक्टिविटी. थर्ड वन इज योर द इपिमर. थर्ड वन इज योर द इपिमर. इपिमर मीन्स सिंपली two same compound but different in configuration. What is the mean of configuration? Means the changes of your दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल में सेम है, दो मॉलिक्यूल सेम है बट एक पोजीशन पे कन्फाइग्रेशन चेंज होगी. मीन्स OH और H चेंज होगा. दिखाता हूँ मैं किस तरह से पर्टिकुलरली. इपिमर आपका कार्बन 2 पे और कार्बन 4 पे फॉर्म होता है. इपिमर आपका कार्बन 2 और कार्बन 4 पे मैक्सिममली फॉर्म होता है. ओके, सी if the two monosaccharide differ from each other in their configuration around a single specific carbon. दो आपके मोनोसैकेराइड है वो स्ट्रक्चरली सेम है बट एक सिंगल कार्बन पे उनका कन्फाइग्रेशन चेंज होता है. इट्स कॉल्ड एज अ इपिमर. इट्स कॉल्ड एज अ इपिमर. देखो एग्जांपल, देखो मैंने एग्जांपल दिया है पर्टिकुलरली कि डी मैनोस और डी ग्लूकोज. ओके, डी मैनोस एंड डी ग्लूकोज पर्टिकुलरली. ओके, सी सेकंड नंबर पे कन्फाइग्रेशन देखो. सी पर्टिकुलरली दिस इज योर OH एंड दिस इज अ EH. ओके, वही देखो सारा स्ट्रक्चर सेम है. ऑल स्ट्रक्चर इज द सेम. द सेकंड पोजीशन कन्फाइग्रेशन चेंज. इधर EH है और इधर OH है. इधर EH है और इधर OH है. मीन्स इपिमर इज अ नथिंग बट द टू मोनोसैकेराइड कंपाउंड. इट्स अ सेम. It's the same but different its configuration in carbon number 2 or carbon number 4. It's called as a ipimer. It's called as a ipimer. Okay, structurally same but different in configuration, different in configuration. Okay, it's called as a ipimer. Okay, glucose and galactose. See, glucose and galactose ये दो स्ट्रक्चर. ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नंबर 4 पे इपिमराइजेशन हुआ है. नंबर 4 पे इपिमराइजेशन हुआ है. आप क्लियरली चेक कर सकते हो OH ग्रुप और H ग्रुप. OH ग्रुप और H ग्रुप आप क्लियरली चेक कर सकते हो पर्टिकुलरली इपिमराइजेशन में. ओके, इपिमराइजेशन इज अ टेक्स प्लेस द कार्बन 2 और कार्बन 4. ग्लूकोज और गैलेक्टोज में 4 नंबर पे हो रहा है और ग्लूकोज और मैनस में कार्बन 2 पे इपिमराइजेशन हो रहा है. इंटर कन्वर्जन ऑफ इपिमर इट्स कॉल्ड एज अ इपिमराइजेशन. ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ इपिमर इट्स कॉल्ड एज अ इपिमराइजेशन. द इपिमरेज कैटलिस्ट द रिएक्शन. ओके, फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी सबसे पहले हमने देखा DNL मोनोसैकेराइड. ओके, सेकंड वन हमने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी और थर्ड वन हमने देखा इपिमर. ओके, फोर्थ वन इज योर द इनैंशियोमर. फोर्थ वन इज योर द इनैंशियोमर. इनैंशियोमर इज अ सेम लाइक इपिमर पर्टिकुलरली. ओके, enantiomer is a special type of stereoisomer. Stereoisomer means structurally same but different in configuration, and that are the mirror image of to each other. That's a mirror image to the each other. means यहाँ पे H molecule यदि राइट साइड पे होगा, यदि आप वो मिरर में देखोगे तो पर्टिकुलरली H molecule पूरे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे. ओके, राइट में यदि H molecule है स्ट्रक्चर में, यदि आप वो मिरर के पास रखते हो तो वो H मॉलिक्यूल पूरा किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड में आ जाएगा. दैट इज योर द इनैंशियोमर सिंपली. ओके, इट्स अ डायस्टेरियोआइसोमर. इट्स अ डायस्टेरियोआइसोमर. द टर्म डायस्टेरियोआइसोमर इज यूज्ड टू प्रेजेंट द स्टेरियोआइसोमर दैट आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ वन अदर. नॉट अ मिरर इमेज टू वन अदर. सारे जो मैंने जैसे बताया कि लास्ट फेस में इनैंशियोमर में जो सारे H एक तरफ राइट साइड में वो मिरर में सारे H लेफ्ट साइड में दिखेंगे, बट डायस्टेरियोमर में ऐसा रहता पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कार्बन ही आपके पर्टिकुलरली कन्फाइग्रेशन चेंज होती है. द कन्फाइग्रेशन चेंजेस विथ रिगार्ड्स द कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4 विल बी प्रोड्यूस द 8 डिफरेंट मोनोसैकेराइड. ओके,
कार्बन 2 पे, कार्बन 3 पे, कार्बन 4 पे कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से पर्टिकुलरली 8 मोनोसैकेराइड आपके प्रोड्यूस हो गए। सी दैट्स ए एग्जांपल, डी अल्डोलेस, डी अल्ट्रोरेस, डी ग्लूकोस, डी मैनोस, ओके, डी ग्लूकोस, डी अल्डोस, डी गैलेक्टोज एंड डी टालोस, ये आपके 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ओके, दैट इज अ सिंपल। द लास्ट वन इज योर द एनोमरिज्म। Anemorism is also called as a mutarotation. Anemorism is also called as a mutarotation. Okay, mutarotation means the structurally same but different in your configuration. Okay, epimer भी structurally same different in configuration. epimer में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे होता था, बट एनोमर में और म्यूटारोटेशन में कार्बन नंबर 1 पे होता है, अल्फा और बीटा रहता है वहाँ कार्बन अल्फा बीटा। कार्बन फर्स्ट पे पर्टिकुलरली वो कन्फिग्रेशन चेंज होता है। एनोमर हैव अ सम कंपोजिशन बट डिफरेंट इन द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप अराउंड द एनोमरिक कार्बन आइटम। ओके, द एनोमरिक कार्बन इज अ कार्बोनिल कार्बन आइटम। एग्जाम्पल, द फर्स्ट कार्बन आइटम इन अ ग्लूकोज इज अ एनोमरिक कार्बन आइटम। एनोमरिक कार्बन आइटम मीन्स द, जैसे मैंने बताया OH शफल होते हैं, वैसे ही फर्स्ट पोजिशन पे आपका पर्टिकुलरली H और OH शिफ्ट होना, दैट इज योर एनोमर, दैट इज योर एनोमर। ओके, इट्स अ सिंपल। नेक्स्ट वन इज योर द रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट वन इज योर द रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके, द लास्ट टॉपिक इन दिस बायोमोलिक्यूल, इट्स योर द रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। इट्स योर द 3 मेन रिएक्शन। ओके, उसमें एक फोर्थ भी है रिड्यूसिंग शुगर वाला, जो मैंने बताया, फ्री एल्डिहाइडिक और प्री केटोनिक ग्रुप का, जो फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट से पास किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर द टोटोमरिज्म, सेकंड वन इज योर द ओसाजोन फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज योर द ऑक्सीडेशन। थर्ड वन इज योर द ऑक्सीडेशन। दिस इज अ 3 रिएक्शन ऑफ योर द मोनोसैकेराइड। वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज योर द टोटोमरिज्म। The process of shifting hydrogen atom from one carbon atom to another carbon atom to produce the enantiol is called as a tautomerism. Tautomerism यानी क्या? Simply to shifting of your hydrogen atom, not a carbon atom, to shifting of your hydrogen atom, one carbon atom to another carbon atom. Okay, one carbon atom to another carbon atom. देखो आपने स्ट्रक्चर बताया ना मैंने 6 इसका सी 6 ये रहते हैं पर्टिकुलरली। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शिफ्ट होता है वन कार्बन आइटम टू अनदर कार्बन आइटम, इट्स कॉल्ड एज अ टोटोमरिज्म। सिंपल, इट्स कॉल्ड एज अ टोटोमरिज्म। ओके, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, टोटोमरिज्म विच हैविंग द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, in mild alkaline solution carbohydrate contain free sugar group means aldehydic or ketonic group means reducing sugar with the tautomerism to form the enantiol. ओके, यदि माइल्ड अल्कली सॉल्यूशन ले रहे हो आप, उसके साथ पर्टिकुलरली आप रिड्यूसिंग शुगर ऐड कर रहे हो, दे विल बी द फॉर्म ऑफ योर द टोटोमरिज्म मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ योर enantiol. ओके, देयर इज अ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन आइटम, डबल बॉन्ड कार्बन आइटम में पर्टिकुलरली वो अटैच हो जाते हैं, दैट इज योर टोटोमरिज्म। सिंस enantiol आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन अ अल्कलाइन मीडियम। enantiol इज योर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या? इट्स अ फ्री फ्रॉम aldehydic and ketonic group. The agent which having produced free aldehydic and ketonic group, it's called as a reducing agent in alkaline medium. When oxidizing agent like is your the cuprous ion are present, sugar form mixture carbonic acid, the breaking at the double bond. डबल बॉन्ड ब्रेकिंग करना है तो आपको पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा क्यूप्रिक आयन, उसे पर्टिकुलरली उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब वो शुगर और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पर्टिकुलरली मिक्सचर है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। दैट इज योर द टोटोमरिज्म। सिंपली आपको इतना याद रखना है, टोटोमरिज्म यानी क्या? शिफ्टिंग ऑफ योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वन कार्बन आइटम टू अनदर कार्बन आइटम, इट्स कॉल्ड एज अ टोटोमरिज्म। ओके, इट्स अ सिंपल। सेकंड वन इज योर द ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपको डिटर्मिनेशन करना रहता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो हम ओसाजोन के थ्रू पर्टिकुलरली फाइंड आउट करते हैं, और ओसाजोन फॉर्मेशन ओनली रिड्यूसिंग शुगर ही फॉर्म करता है।
रिड्यूसिंग शुगर यानी क्या, ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्री अल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप हो, लाइक इज योर ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. ओके, सी ऑल रिड्यूसिंग शुगर विल बी फॉर्म ओसेजोन. मैंने बताया ना, who is a form osazone formation, only the reducing sugar will be form osazone formation which excess the phenylhydrazine when kept at a boiling temperature. okay, phenylhydrazine हाइड्रोक्लोराइड प्लेस करते हैं उसमें 0.2 ग्राम, उसके बाद उसे बॉइलिंग किया जाता है 15 मिनट्स तक. आफ्टर द 15 मिनट्स मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर होती है. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शुगर कंपाउंड लेते हैं, उसमें एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है. उसके बाद हम ऐड करते हैं सोडियम एसीटेट. उसके बाद हम ऐड करते हैं फिनिलहाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड 0.2 ग्राम. उसे क्या करते हैं कि 15 मिनट तक पर्टिकुलरली हम टेस्ट ट्यूब में प्लेस करते हैं. टेस्ट ट्यूब में प्लेस करने के बाद 15 मिनट तक उसे बॉईल करते हैं. आफ्टर द बॉइलिंग उसे क्या करते हैं कि स्लाइड पे लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं डेफिनेटली. बॉईल होने के बाद उसे कूल होने देते हैं. कूल होने के बाद स्लाइड पे क्रिस्टल लेते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप. यदि नीडल शेप का आया तो वो ग्लूकोज है, यदि ब्रूम शेप का आया तो पर्टिकुलरली लैक्टोज है, सनफ्लावर शेप का आया तो वो माल्टोज है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेप ऑफ दिस क्रिस्टल वी हैव टू आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन योर कंपाउंड. ओके, द ओसेजोन्स आर इनसोल्यूबल. क्रिस्टल मीन्स इनसोल्यूबल इन योर लिक्विड. ओके, यदि सोल्यूबल हो जाएगा तो मीन्स क्रिस्टल दिखेंगे नहीं आपके. ओसेजोन ऑफ इंडिविजुअल शुगर हैव characteristic of crystal form. okay, osazone, it's your individual sugar and which having property the formation of crystal. The difference in glucose, fructose, mannose are depend on the first and second carbon and the difference is a mass to the phenylhydrazine react to these two carbon. देखो ये phenylhydrazine कहाँ पे रिएक्ट करता है, इट्स योर द फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे. देखो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोस का डिफरेंस का है, इट्स योर द पोजीशन फर्स्ट एंड पोजीशन सेकंड. तो फिनिलहाइड्रोजन वहाँ पे ही अटैक करता है पर्टिकुलरली एंड रिएक्टेड एंड टू द फॉर्म ऑफ योर क्रिस्टल. सो द ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोस गिव द ब्रूम शेप ओसेजोन. मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से क्रिस्टल फॉर्म होते हैं. सी ये नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर है लाइक अ ब्रूम शेप. ओके, झाड़ू के शेप का पर्टिकुलरली जो आपका ब्रूम आता है उसके शेप का है. इट्स यूर द ग्लूकोसाइजोन. एक्चुअली पर्टिकुलरली नीडल शेप जैसा आता है वो. ओके, माल्टोस इज अ स्टार शेप और सनफ्लावर शेप जैसा आता है. और लैक्टोस जो माल्टोस है आपका पर्टिकुलरली स्टार शेप का आता है, और जो लैक्टोज है इट्स यूर द लाइक अ सनफ्लावर. इस तरह से पर्टिकुलरली क्रिस्टल शो होते हैं. इज योर ओसेजोन. एंड लास्ट वन इज योर द ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन किससे होता है? ऑक्सीडेशन इज अ डिपेंड ऑन योर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये कहाँ अटैक करता है पता है क्या? टर्मिनल ऑफ योर अल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप. टर्मिनेटिंग ऑफ योर अल्डिहाइडिक और टर्मिनेटिंग ऑफ योर अल्कोहलिक ग्रुप, और पर्टिकुलरली बोथ मीन्स अल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप. जो ऑक्सीडेटिव एजेंट है वो कहाँ अटैक करता है पता है क्या? जो टर्मिनल का आपका अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और केटोनिक ग्रुप रहेगा और अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा, वहाँ पे पर्टिकुलरली वो अटैक करके ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करवाता है. सी, डिपेंड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज टू टर्मिनल अल्डिहाइड और टर्मिनल अल्कोहल और बोथ. वो एक तो टर्मिनल अल्डिहाइड पे अटैक करेगा और टर्मिनल अल्कोहल पे अटैक करेगा, या बोथ मीन्स दोनों पे, अल्डिहाइड पे भी अटैक करेगा और अल्कोहल पे भी अटैक करेगा. द ग्रुप में बी ऑक्सीडाइज फॉर द इंस्टेंट कंसिडर ग्लूकोज. ओके, अब ग्लूकोज को कंसिडर करते हैं. यदि ग्लूकोज पे पर्टिकुलर ग्लूकोज के टर्मिनल पे अल्डिहाइड पे भी अटैक कर रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और अल्कोहल पे अटैक कर रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हम देखते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड. यदि अल्डिहाइड ग्रुप पे यदि टर्मिनल ग्लूकोज टर्मिनल के अल्डिहाइड ग्रुप पे यदि पर्टिकुलरली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है, दे गेटिंग अ फॉर्म ऑफ योर द ग्लूकोनिक एसिड. If the oxidation agent which having the react on the termination of your the alcoholic group, they give the form of your glucuronic acid. It's your the third property. Okay, thank you. Here is your finish. The first biomolecule is your the carbohydrate. Okay, what we was discuss
in today. Define carbohydrate. Carbohydrate is your the polyhydroxyaldehydic and ketonic group which having the form on a hydrolysis. Okay, उसके बाद हमने bio particularly उसके फंक्शन देखे हमने. Thus near about the 6 function. Then the classification there are categorized into the 3 type: monosaccharide, oligosaccharide and you are the polysaccharide. उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी मोनोसैकेराइड्स की. नियर अबाउट 6 प्रॉपर्टीज देखी. डेक्स्ट्रो एंड लीवो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड. देन ऑप्टिकल एक्टिविटी. थर्ड वन हमने देखा इपिमराइजेशन. फोर्थ वन हमने देखा इनैंशियोमर. और फिफ्थ वन हमने पर्टिकुलरली उसमें देखा म्यूटेशन और एनोमरिज्म. उसके बाद हमने रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड देखा, टोटोमरिज्म, ओसाजोन फॉर्मेशन एंड योर oxidation. Okay, here is your finished. The first biomolecule is your carbohydrate. Hope you understand. If any problem regarding this topic, you directly contact with me. Thank you, students.